Hello, welcome everyone. Today we are going to start with the class 10 mathematics part 2 chapter number 2 Pythagoras theorem practice set 2.1 solution 4. What is given in this question in your textbook page number 39, Maharashtra State Board textbook page number 39, question number 4, right angle triangle. Triangle PSR is a right angle triangle given in the question. Right angle triangle is given. This is a size 30, so definitely this angle will be a 60. ये right angle triangle है हमारा. SPR, this is a 90 degree. Here measurement 6 is given, here it is given 30, so definitely the remaining side it's a remaining angle it's a 60. So we have to find what we have to find in this question. We have to find RP and PS. Okay, so what we will write in triangle PSR, angle PSR is equal to 90, angle SPR is equal to 30, it's given. Therefore remaining angle, therefore the angle PRS is equal to 60, that will be the remaining. It's given in the question, this is given in the question, and it is a remaining angle. Therefore triangle PSR is 30, 60, 90, 30, 60, 90 triangle बन गया. What we know according to the 30, 60, 90 theorem, the side opposite to the 30, and see this is a right angle triangle. This is a right angle triangle, so opposite to the right angle, this is our hypotenuse side. So opposite the 30 opposite side, it's a RS. RS is what the RS measurement is equal to half of HP. 30, 60, 90 theorem. This is a theorem of 30, 60, 90. It's very important that you have to remember what the theorem says. So what RS measurement is given 6 is equal to 1 upon 2 into hypotenuse side. Hypotenuse side measurement it's a PR, so we'll write PR here. 1 upon 2 it's there. If we reciprocal, it's become 2 upon 1 is equal to PR. Therefore PR is equal to 12 centimeter. We got the measurement of TR or RP is equal to 12 centimeter. It's not given, so we just write the 12. Then this is a 60, the opposite angle, opposite of the angle 60. We know that that is PS. PS is equal to root 3 upon 2 into the side opposite to the 60, PS of HP. Again this implies in 30, 60, 90 theorem. 30, 60, 90 theorem. Okay, what it implies, root 3 upon 2. Hypotenuse side we know, hypotenuse side we found 12. If it's reduced, that will be a 6. So PS is equal to 6 under root 3. So measurement of PS is equal to 6. PS we have to find, so PS measurement is 6 under root 3. Even if they given the measurement of root 3 value, it's given in the question, then we can multiply by 6, otherwise leave it here only, so that will it's enough. In the question number 5th, in the question number 5th, what is given? Find the AB and AC we have to find with the help of the information given in the question. See, triangle it's given, hypotenuse, this isosceles right angle triangle is given. This is called isosceles
right angle triangle, and this is a root 8. This measurement it's root 8. What measure it's a root a, it's given, see half of the solution it's given only, it's a 90. So we says that we know that the triangle ABC is an isosceles right angle triangle, because these two sides are equal, therefore these two angles are equal. AB is equal to AC, given in the question, therefore angle A is equal to angle C. Isosceles triangle theorem, isosceles triangle theorem, and angle B is equal to 90, it's given. Okay, so what we have to do, so angle B is equal to 90, therefore angle A is equal to angle C, that will be a 45. Therefore triangle ABC is 45 90 theorem. It's 45 90 theorem. So here so side opposite to 45, what is the side? This is a 45, this side it's 45, the side opposite to the 45 is equal to AB. So AB measurement, it's according to the 45 90 theorem, 1 under root 2 into hypotenuse side. This is implies in 45 90 theorem. 90 theorem. AB measurement we don't know. 1 upon under root 2, hypotenuse side is given AC, so we'll write AC. AB is equal to 1 under root 2 into AC measurement is given root 8, so we write root 8. So AB is equal to root 8 upon root 2. Further if we divide, so under root 8 upon 2 divided by 8, that will be a 4. So AB is equal to root 4. Root 4 it's the root of 4 it's 2. Therefore AB is equal to AC is equal to 2. That answer it's 2. No need to write centimeter or anything. Next question. Here find the side and the perimeter of square whose diagonals it's 30. Square it's given, one square it's given, and there a diagonal measurement it's given. ABCD is a square given in the question, and in the question number 6, page number 39, ABCD diagonal measurement is given root 10. We have to find, what we have to find? We have to find the area and perimeter of square. Area and perimeter of square. So first we will write quadrilateral ABCD is a square. In square, each angle it's angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. Each angle it's a right angle. हर एक एंगल राइट एंगल होता है. ईच एंगल इट्स अ राइट एंगल. इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल देखेंगे, और ये भी होता है ए बी,
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी. All sides are equal. It is a square, so all sides are equal. So in triangle ये this all sides are equal हो जाएगी. So in triangle ABC, triangle ABC है, angle ABC is a right angle triangle. Is a right angle triangle. AB is equal to BC. All sides are equal. All sides of squares are equal. अगर ये दो साइड इक्वल है तो क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ABC इज 45 90 का हो जाएगा ट्राइंगल. तो हम 45 90 का डायगोनल दिया है. AC इज़ अ हाइपोटेनियस साइड है, वो हमारी हाइपोटेनियस साइड है. द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ट्राइंगल इट्स ऑलवेज हाइपोटेनियस साइड. तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा, ए बी हमको फाइंड करना है. एक साइड फाइंड करेंगे तो उससे हमें एरिया भी पता चल जाएगा, पेरीमीटर भी पता चल जाएगा. ए बी क्या है, इट्स अ साइड, ये 45 हो जाएगा हमारा, ये 45 हो जाएगा. द साइड अपोजिट टू द 45 दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है, 1/√2 इंटू एच पी. यहाँ पे रीज़न लिखेंगे 45 90 थियरम. देयरफॉर 1/√2 इंटू √10 है, तो क्या हो जाएगा, √10/2 कट हो जाएगा तो √5 हो जाएगा. तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू √5. ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू √5. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर. दैट फॉर्मूला इज साइड स्क्वायर. व्हाट इज साइड, √5 स्क्वायर. व्हाट इज √5, इट्स अ 5. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए quadrilateral ABCD, it's 5 centimeter square. Now we have to find the perimeter of square. Perimeter of square is equal to, we must know the formula. Perimeter of square is equal to 4 into side is equal to 4 into what is side, √5. So 4/5 that is the perimeter हो जाएगा, perimeter of square. perimeter हो जाएगा स्क्वायर का. नेक्स्ट इन द क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन दिया है, राइट एंगल. ऑल क्वेश्चन इट्स गिवन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओनली बिकॉज ऑफ द hypotenuse. E is given, F is given and the D is given. This measurement is given 8 and this measurement is given 12 and it is a right angle triangle. अगर ये right angle triangle है तो ये भी right angle triangle हो जाता है. What is given in the question? Given in the question DFE is equal to 90. DFE ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है. यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है. ओके, फिर what else is given in the question? Given in the question FG perpendicular on the ED. FG perpendicular है ED पे.
GD measurement 8 is given. GF 12 is given. We have to find the EG. We have to find FD and we have to find EF. ये थिंग्स फाइंड करनी है. पहले हम ज्योमेट्री मीन से फाइंड कर देंगे. FG स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू EG written by geometry mean. ज्योमेट्री मीन बिकॉज यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, परपेंडिकुलर भी है. तो GF मेजरमेंट दिया है 12 स्क्वायर, GD दिया है 8 इंटू EG दिया है. यहाँ पे 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू EG. दिस 8 comes this side. If we reciprocal, so multiplication become a divide is equal to EG. 4 से रिड्यूस करेंगे 4 2 और 4 3 4 से रिड्यूस यहाँ पे करेंगे तो 6 हो जाएगा. EG इज इक्वल टू 18 आ जाएगा. यहाँ पे हमारा EG का मेजरमेंट 18 आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड FD. सी यहाँ पे ये ट्राइंगल पे फोकस करेंगे. राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा. सो इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन ट्राइंगल DGF इज राइट एंगल ट्राइंगल. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये उसकी हाइपोटेनियस साइड हो जाएगी. HP हो जाएगा. FD स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर. So यहाँ पे FD is equal to HP. We don't know the measurement of FD, so here we write FD square. GD it's 8 square and GF it's 12 square. So FD square is equal to 8 square 64, 12 square 144. FD square is equal to 208. It's not a perfect square. 208 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. अगर हम उसको प्राइम फैक्टर से देखते हैं कि अगर उसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे तो 104 आ जाएगा. 2 से करेंगे तो 52 आ जाएगा. 2 से करेंगे तो 26 आ जाएगा. 2 से 13 हो जाएगा. 13 1 13. तो FD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 1 2 3 4 एंड 13. और यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे तो FD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 2 2 2 13. और ये परफेक्ट स्क्वायर है. ये पैर बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी. तो FD मेजरमेंट इज इक्वल टू 2. ये 2 का पैर है, एक बार आ जाएगा. ये 2 की पैर है, रूट के बाहर ले लेंगे तो एक बार आ जाएगा. तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा. 4 अंडर रूट 13. देयरफॉर FD इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 13 आ गया. हमको FD फाइंड करना था. FD आ गया. अभी EF फाइंड करना है. तो ये भी ऐसे ही कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल है, तो दूसरा भी राइट एंगल ट्राइंगल ही हो जाएगा. एंड दैट्स राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो व्हाट वी विल राइट इन ट्राइंगल EGF
is a right angle triangle. Is a right angle triangle. So by Pythagoras theorem, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ई एफ हाइपोटेनियस साइड है, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर. ओके, ई एफ स्क्वायर वी डोंट नो, सो वी विल राइट ई एफ स्क्वायर दिस वे. हाउ टू फाइंड ई जी स्क्वायर, इट्स गिवन 18 स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर, इट्स गिवन 12 स्क्वायर. ई एफ स्क्वायर विल राइट एज इट इज़, and 18 square is 324 plus 12 square is 144. If we add them, so we will get EF square is equal to 86468. Again, this is not the perfect square root, so we have to factorize this. 468. तो यहाँ पे ई एफ लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर है वो अंडर रूट में चला जाएगा. इसको फैक्टराइज करेंगे, पहले 2 से जाएगा, 2 3 4, अगेन डिवाइड बाई 2 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 17, और ये हो जाएगा 13 7 8 9. 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27. 3 से जाएगा 13 13 1 ज़ा 13. 2 की पैर बन जाएगी, 3 की पैर बन जाएगी, 2 3 और 13. इसकी जोड़ी बन जाएगी, उसको एक ही बार लिखेंगे जब वो रूट के बाहर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 3 अंडर रूट 13. सो ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट 13. ई एफ की भी मेजरमेंट मिल गई, 6 अंडर रूट 13. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल दिया है. फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ, लेंथ उसकी 35 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, और उसकी डायगोनल मीन्स ये हो जाएगा. बाय पाइथागोरस थ्योरम से ही कर लेंगे. क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल गिवन है. हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे जो फाइंड करना है वो हमें पता होना चाहिए. बी डी को फाइंड करना है. बोथ द डायगोनल्स इन द रेक्टेंगल्स आर इक्वल, सो विल फाइंड बी डी. एंड बी सी इज इक्वल टू 35, सी डी इज इक्वल टू 12. एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90. ओके, देयरफॉर इन ट्राइंगल बी सी डी, क्योंकि ये 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो बाय पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम आ जाएगा. पाइथागोरस थियरम से हम फाइंड करेंगे तो हाइपोटेनियस साइड है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. बी डी वी हैव टू फाइंड, बी सी इज गिवन 35 स्क्वायर प्लस सी डी इज गिवन 12 स्क्वायर. बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर 35, 3 4 ज़ा 12, 1 2 2 5 प्लस 12 स्क्वायर इज 144. बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 and 1369, it's a BD square, it's a 1369, and the 1369 is 37 square.
37 इंटू 37 करते हैं तो हमें 1369 मिलता है. 37 मल्टीप्लाई बाय 37. 7 7s are 49, 4 goes up, 7 3s are 21 plus 4 25, 0 7 3s are 21, 2 goes up, 9 10 11 9 6 3 1 1 3 6 9. Square gets cut, therefore BD is equal to 37. Therefore the diagonal of the rectangle, therefore the length of the diagonal of rectangle is equal to 37. Next question. In this question also we have to use the Pythagoras theorem only. P R Q it's given, and here midpoint it's given, that name it's M, and here it's a right angle triangle. This M is a midpoint, therefore these two sides are equal. Question number 9. Whenever asterisk mark is given in the textbook, that means it's that question it's a bit challenging. So here what is given in the question, M midpoint दिया है, given M is a midpoint, that means Rm is equal to MQ, Rm is equal to MQ is equal to half of RQ. सबका मतलब एक हो जाता है. Here the angle PRQ is equal to 90. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं और हमको यहाँ पे प्रूव करना है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर. इसको प्रूव करना है. तो पहले हम लिखेंगे, देखो ट्राइंगल पहले दिया है, इन ट्राइंगल PRQ, पूरा ट्राइंगल ले लेंगे. इन ट्राइंगल PRQ, एंगल PRQ इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है पाइथागोरस थ्योरम के लिए. इन ट्राइंगल PRQ इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर, या हाइपोटेनियस साइड है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये हो जाएगा. और यहाँ पे हम ले लेंगे कि एक इक्वेशन बन हो जाएगा. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल PRM, एंगल PRM इज 90, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर, PM हाइपोटेनियस है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, ये हो जाएगा. इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं. हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर लेना है. PQ स्क्वायर लेना है तो हम ये लिख दिया, PM स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हमें पता है RM क्या है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, और RQ क्या है हमारा, RM इज इक्वल टू
पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम पी एम स्क्वायर है, ये पी एम स्क्वायर है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एम स्क्वायर, जो ये है आर एम स्क्वायर की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एम क्या है, हाफ ऑफ आर क्यू है। आर एम इज इक्वल टू हाफ क्यू, क्योंकि आर क्यू बिकॉज एम इज़ अ मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है तो आर क्यू हो जाएगा आर एम का वैल्यू। आर क्यू और आर एम, तो ये हमारा यहाँ पे और ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, इसका आंसर लिखेंगे पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम की जगह पे हम ये लिख लेते हैं 1/2 आर क्यू स्क्वायर, होल ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 1/4 आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे 4 आ गया तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, इसको रिड्यूस करने निकालने के लिए, बाय मल्टीप्लाइंग 4 थ्रूली, पूरा थ्रू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्रूली मीन्स पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4, तो ये 4 कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आर क्यू है तो आर क्यू को हम इसकी जगह पे, आर क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम आर क्यू की जगह पे इसको ले सकते हैं, आर क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ पे है हमारा 4 पी एम स्क्वायर, 4 पी एम स्क्वायर प्लस 4 पी आर स्क्वायर दिया है हमारा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 पी आर स्क्वायर प्लस 3 पी आर स्क्वायर प्लस 1 पी आर स्क्वायर प्लस 1 पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ये जो 4 था तो उसको हमने 3 और 1 कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा 1 पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर क्या हो जाता है, पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर है हमारा, पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर की जगह पे पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या लिख देंगे, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पी आर स्क्वायर प्लस हमारा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा फ्रॉम 1, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, माइनस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर लिख देंगे। और हमको फाइंड क्या करना था, हमें बताना था, इसको रिवर्स कर देंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम आर स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ये हो गया, हैंड्स प्रूफ। 10th question, textbook page number 39. The walls of 2 buildings on either side of the street are parallel to each other. दो वॉल है,
दो वॉल दिया है, दे आर पैरेलल, ये दोनों वॉल पैरेलल है। द लैडर्स ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग, इट्स प्लेस्ड ऑन द स्ट्रेट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीच द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। एक लैडर हमें बनाना है 5.8 मीटर का। यहाँ पे एक लैडर कैसा है, ऐसे हो जाएगा, 5.8 मीटर का है। द लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग इज़ प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट, उसको ऐसे रखा है तो ये हमारा स्ट्रीट हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रीट हो जाता है। सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीच द विंडो, और इसका जो टॉप है वो विंडो पे रीच करता है ऑफ अ बिल्डिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, वो 4 मीटर पे है। ऑन टर्निंग द लैडर्स, ये लैडर्स को हम टर्न कर देते हैं। on turning the ladder over to the other side of the street, its top reach the window of the building at the height, इसकी हाइट 4.2 मीटर हो जाती है। तो यही लेडर्स को हमने यहाँ पे ये कर दिया, तो इसकी मीटर, ये इसका मेजरमेंट 4.8 हो जाएगा। तो हमको ये विथ ऑफ द स्ट्रीट फाइंड करना है, व्हाट इज़ द विथ ऑफ द स्ट्रीट हो जाएगा। इस तरह से पहले हमें डायग्राम बनाना है। यहाँ पे भी एक विंडो है, सपोज़ ये हमारा डायग्राम बना देंगे ABC, और यहाँ पे D और E बना देंगे। देखो ये क्या है, ये लैडर्स है, ये जो हाइट है, हाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, AB पैरेलल DE, एंड ये क्या होता है, AB perpendicular BD and ED perpendicular on the BD, तो ये perpendicular होता है तो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। therefore पहले ये वाले ट्राइंगल को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सो therefore इन द ट्राइंगल ABC, इन द ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। सो बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल प्लस BC स्क्वायर कर देंगे। मेजरमेंट फाइंड करना है। AC स्क्वायर 5.8 स्क्वायर है, AB स्क्वायर इट्स 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। 5.8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33.64 हो जाता है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे हम ये नंबर को शिफ्ट कर देंगे, 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ पे 64 हो जाएगा और यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा तो 17.64 हो जाएगा BC स्क्वायर। 17.64 वो किसका स्क्वायर है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू वो हमारा 42 का स्क्वायर है। 42 का स्क्वायर है, स्क्वायर कट हो जाएगा। देयरफॉर BC इज इक्वल टू, BC का मेजरमेंट 4.2 आ जाएगा। BC मेजरमेंट 4.2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये मिल गया 4.2। अभी ऐसे ही हम ये साइड पे करेंगे। इन ट्राइंगल CDE, angle CDE is a right angle triangle. So by Pythagoras theorem, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइड है हमारी CE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा DE स्क्वायर।
ये हो जाएगा हमारा 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई है हमारे पास 4 है एंड सी डी वी हैव टू फाइंड। 5.8 का मेजरमेंट हमने फाइंड किया था। 5.8 का 33.64 हो जाता है सी डी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेजर, यहाँ पे 4.2 मेजर दिया है, यहाँ पे इसकी मेजरमेंट 4.2 है, सॉरी 4.2 स्क्वायर है, 4.2 है तो 42 का स्क्वायर हमारा था 17.64 हो जाता है। और यहाँ पे 33.64 माइनस 70.64 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा और 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज 4 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट, तो सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमको मेजरमेंट फाइंड करना है बी डी का। बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी because they lies in the one straight line BCD is a collinear point. So BC measurement we have found, we got the BC is a 4.2 plus CD it's a 4, that measurement is 8.2, BD is equal to 8.2, therefore the width of the straight is equal to 8.2 centimeter. This is our solution. Everyone note down this answer and show me the solution in homework. Thank you everyone for watching this video.